Hello everyone, I welcome you in this unique video series on world-class Six Sigma Black Belt free course, which also includes Six Sigma Green Belt and Six Sigma Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. Language of this video will be English. That means everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some part will be also translated in Hindi. Six Sigma Black Belt के free course की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, अ शॉर्ट ब्रीफ about the benefit of this course and how you can obtain Six Sigma or Lean Six Sigma certificate through us is displayed at the end of this video. मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है। फॉर द न्यू ऑडियंस, I would like to share that the topics which have been displayed on your screen had been already covered in our previous module, that is module 1 to module 12. This is the 13th module of this video series. अपने नए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो टॉपिक्स मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए हैं वो ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज़ के पहले के मॉड्यूल्स में कवर किए जा चुके हैं। यह इस वीडियो सीरीज का 13th मॉड्यूल है। इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स विच हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन इन डेप्थ एंड डिटेल विद सिंपल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इस मॉड्यूल में हम प्रैक्टिकल और सरल उदाहरणों के साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी टॉपिक्स को गहराई और विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। So let's begin this module. The topic which I am going to take now is that if two datas are equal, then how to consider them in a Pareto chart. जो टॉपिक मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर दो डाटा बिल्कुल सेम हैं तो उनको पेरेटो चार्ट में कैसे कंसिडर किया जाए। This is the data of an organization about the rejections of different components from their customer for the period of July and August 2025. I hope you have watched my previous module on Pareto and now you know all the steps of making a good Pareto diagram. When I say good, that means technically, theoretically and practically correct Pareto chart. पिछले मॉड्यूल में हम ऑलरेडी पेरेटो चार्ट बनाना सीख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पेरेटो चार्ट बनाने के सारे स्टेप्स अब पता होंगे। So what was the next step after collecting the data? Yes, you are right, to arrange the data into descending order and to calculate the cumulative percentage against each and every row. And we cut off the table at vital few. The vital few can be 80% or as per our own criteria. And rest are put in others. तो अगला स्टेप क्या था पेरेटो बनाने का? बिल्कुल ठीक, हम इस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं और हर रो के अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल देते हैं। तो हम इस टेबल को वाइटल फ्यू में कट कर देते हैं और वाइटल फ्यू का क्राइटेरिया या तो हमारा बनाया हुआ होता है या 80% होता है और बाकी को अदर्स में डाल देते हैं। दिस एग्जाम्पल आई हैव शेयर्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 12, वेयर आई हैव टेकन vital few up to 80% only and rest were put in others. ये एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैंने पिछले मॉड्यूल 12 में लिया था, जहाँ पर 80% तक मैंने वाइटल फ्यू को कंसिडर किया था और बाकी को अदर्स में डाल दिया था। इफ़ यू लुक एट दिस टेबल केयरफुली यू विल फाइंड दैट कंपोनेंट DN, MD, TN, SD, UV and KZ have same frequency, that is frequency 2, but the question comes to our mind is why component DN is given priority in Pareto over the other components having the same frequency. Answer to this question is that if two or more categories have exactly the same figure or same data,
then place them in a Pareto chart for actions according to their severity or criticality to the customer or to the organization. Criteria can be either PDQCSM, which we have already discussed during the defined stage module, customer dissatisfaction, ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस टेबल पर ध्यान से गौर करें तो पाएंगे कि कंपोनेंट DN, MD, TN, ST, UV और KZ सभी की फ्रीक्वेंसी बराबर है, यानी 2 है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमने सभी की फ्रीक्वेंसी बराबर होते हुए भी कंपोनेंट DN को बाकी की तुलना में पेरेटो में क्यों प्रायोरिटी दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है तो पेरेटो चार्ट में एक्शंस के लिए उनको उनकी सीवियरिटी या क्रिटिकलिटी के आधार पर प्लेस करें। और ये सीवियरिटी और क्रिटिकलिटी या तो कस्टमर के प्रति हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो सकती है। सीवियरिटी और क्रिटिकलिटी का आधार या क्राइटेरिया PDQCSM हो सकता है, जिसको हमने डिफाइंड स्टेज मॉड्यूल में विस्तार पूर्वक कवर किया है। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी हो सकती है। इन दिस केस रिजेक्शन ऑफ कंपोनेंट DN एट कस्टमर्स एंड is considered as more critical for actions in comparison to other components with the same frequency, because the fault in component DN at customer's end can be only caught after the full assembly and not at the component fitment stage। तो इस केस में component DN का customer end पर rejection action के लिए इसलिए ज़्यादा critical माना गया क्योंकि component DN का fault कस्टमर एंड पर फुल असेंबली के बाद ही पता चलता है, ना कि कंपोनेंट फिटमेंट स्टेज पर। एंड दिस वाज द फाइनल पेरेटो आफ्टर गिविंग प्रायोरिटी टू कंपोनेंट DN फॉर एक्शंस ओवर अदर कंपोनेंट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। और ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है, ये कंपोनेंट DN को प्रायोरिटी देने के बाद पेरेटो का फाइनल स्वरूप है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल विच इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वेयर टॉप 2 components, that is component ZZ and component XX, has the same frequency, that is 27. If this Pareto is being made by a purchase department who are responsible for vendor supplied component, then for the actions in the Pareto, they can give priority to component ZZ based on the logic that component ZZ is vendor supplied and component XX is in-house manufacturing. And if this Pareto is being made by the manufacturing department, then they can give priority to component XX over component ZZ। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। मान लीजिए इस केस में अगर टॉप 2 कंपोनेंट्स कंपोनेंट ZZ और कंपोनेंट XX की फ्रीक्वेंसी सेम होती, अगर ये पेरेटो परचेज डिपार्टमेंट बनाता है तो वो कंपोनेंट ZZ को इस आधार पर प्रायोरिटी दे सकता है कि कंपोनेंट ZZ वेंडर से आता है जबकि कंपोनेंट XX इन हाउस बनता है। और अगर यही पेरेटो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाता है तो वो कंपोनेंट XX को ZZ के ऊपर प्रायोरिटी दे सकता है। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज what is the difference between a pie chart and a Pareto chart. For the benefit of my audience, let me quickly tell you about how to make a pie chart using Microsoft Excel. तो अपने दर्शकों की सुविधा के लिए जल्दी से मैं ये बता दूं कि पाई चार्ट को Microsoft Excel में कैसे बनाया जाता है। For a like-to-like comparison between a Pareto chart and a pie chart, I'm taking the same data table which I have used in a Pareto chart. पाई चार्ट और पेरेटो चार्ट का अंतर ठीक से समझने के लिए मैं पाई चार्ट बनाने के लिए पेरेटो चार्ट में यूज़ की गई टेबल को ही ले रहा हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू सेलेक्ट द होल टेबल, देन गो टू इंसर्ट, देन गो टू चार्ट्स और रिकमेंडेड चार्ट्स, सेलेक्ट ऑल चार्ट्स, फ्रॉम द ऑल चार्ट्स सेलेक्ट द पाई चार्ट एंड क्लिक ओके, एंड दिस विल बी द आउटकम ऑफ स्टेप 1. Step 2 is to label the data on the pie chart. Step 2 जो है वो पाई चार्ट में
डाटा को लेबल करने का स्टेप है। फॉर स्टेप 2, क्लिक ऑन द पाई चार्ट एंड वंस द पाई चार्ट इज लॉक्ड, right click. The right click will open the side menu, and from the side menu select add data labels. On the right side of your screen you can see the outcome of step number 2, where data on each pie has been labeled. तो आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड में पाई चार्ट है वो स्टेप 2 का आउटपुट है, जिसमें आप ईच पाई के ऊपर डाटा को लेबल किया हुआ देख सकते हैं। Step 3 is for the presentation purpose, where you can increase the font size. To increase the font size of data, click on any of the data and increase the font size from the top. And to increase the font size of legends, click on any of the legend and increase the font size from the font size menu. अगर आप पेरेटो चार्ट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं तो स्टेप 3 में आप डाटा लेबल्स और लीजेंड के फॉन्ट साइज को बढ़ा लीजिए। अगर आपको डाटा लेबल्स के फॉन्ट साइज बढ़ाने हैं तो किसी भी डाटा पे क्लिक कीजिए और ऊपर वाले मेन्यू से जाकर फॉन्ट साइज को बदल दीजिए। और लीजेंड्स के अगर फॉन्ट साइज चेंज करने हैं तो किसी भी लीजेंड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सारे लीजेंड लॉक हो जाते हैं तो ऊपर से जाके उनका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए। फोर्थ स्टेप इज अगेन फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस, एंड फॉर द फोर्थ स्टेप प्लीज फॉलो द sequence as being displayed on your screen. चौथा स्टेप भी प्रेजेंटेशन के लिए है और फोर्थ स्टेप को करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सीक्वेंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सो दिस इज आवर फाइनल आउटकम ऑफ पेरेटो चार्ट विच वी हैव लर्नड इन मॉड्यूल 12 एंड द आउटकम ऑफ पाई चार्ट विच वी हैव लर्नड जस्ट नाउ। तो आपकी स्क्रीन पर पेरेटो चार्ट जो हमने मॉड्यूल 12 में सीखा था उसका आउटपुट और पाई चार्ट जो हमने अभी अभी सीखा है उसका आउटपुट एक साथ मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। सपोज इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द वाइटल फ्यू एज 80%, वी वांट टू कंसिडर 90% एज वाइटल फ्यू। देन हाउ द पेरेटो एंड द पाई चार्ट will look like that I have displayed on your screen. मान लीजिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हम वाइटल फ्यू को टोटल कंट्रीब्यूशन का 80% की जगह 90% कंसीडर करेंगे, तो इस केस में पेरेटो और पाई चार्ट कैसे लगेंगे वो मैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? आई होप योर ऑब्जर्वेशन इज सेम एज माइन, दैट as the number of categories increases in a pie chart, it becomes difficult to distinguish between different categories, while it is comparatively easy in a Pareto chart. तो आपने क्या नोटिस किया? जैसे जैसे पाई चार्ट में नंबर ऑफ कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे पाई चार्ट में उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता जाता है, जबकि पेरेटो चार्ट में ये थोड़ा आसान होता है। पाई चार्ट इज नॉट यूजर फ्रेंडली एट ऑल इफ डाटा ऑन पाई चार्ट इज नॉट लेबल्ड, स्पेशली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज आर very small. In a Pareto chart, it is easy to change the scale of the bar to highlight the variation, even if the data is not labeled. अगर हम पाई चार्ट में डाटा को लेबल नहीं करते हैं तो इसको पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ बार ग्राफ में अगर हम डाटा को लेबल करना भूल जाते हैं तो हम उस वेरिएशन को बार के स्केल में चेंज करके दिखा सकते हैं। One more difference is that pie chart does not give cumulative percentage directly even if each data is labeled. Yes, it can be calculated, but Pareto is more effective to see the cumulative percentage against each bar. Hence, pie chart cannot be called as a substitute to a Pareto chart. एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम पाई चार्ट में अगर डाटा को लेबल किया भी है तो भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज को डायरेक्टली नहीं देख सकते। हालांकि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट पेरेटो चार्ट में हर बार के अगेंस्ट हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज को डायरेक्टली देख सकते हैं। इसलिए पाई चार्ट पेरेटो चार्ट का
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। In my opinion, pie chart should be used for specific purpose. For example, pie chart for income and expenditure of a nation against one unit of their currency on a single sheet of paper or on a single slide. In this case, the Pareto will be less effective because it will not effectively trigger the right and the left side of our brain. Watch my video Boost Mind Power in just 15 minutes, part 1 and part 2, which is on the left and right side of the brain so as to be more creative and more logical. पाई चार्ट का इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पस के लिए करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक देश अपनी एक यूनिट करेंसी को कैसे अर्जित करता है और कैसे खर्च करता है, तो उसके लिए हम एक ही शीट के ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर या एक ही स्लाइड के ऊपर पाई चार्ट बना सकते हैं। इस केस में पेरेटो चार्ट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि पेरेटो चार्ट इस केस में हमारे राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेन को ठीक से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या होता है और हम ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा लॉजिकल कैसे बने, इसको जानने के लिए मेरा YouTube पर वीडियो बूस्ट माइंड पावर इन जस्ट 15 मिनट्स, अपनी दिमाग की शक्ति को 15 मिनट में कैसे बढ़ाएं, जरूर देखिए। टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज स्कैटर प्लॉट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैटर ग्राफ और स्कैटर डायग्राम। स्कैटर प्लॉट वॉज क्रिएटेड अराउंड 1833 by John Herschel. But the scatter plot was made popular by Sir Francis Galton in and around 1880s. John Herschel used this diagram, which was later called as scatter diagram or scatter plot, to study the orbits of double stars. He plotted the positional angles of double stars on y-axis and the time on x-axis. He did not call it as a scatter diagram or scatter plot. In fact, he just graphically plotted these observations on a x-y graph. But later, it was recorded as first example of scatter diagram. Scatter plot is a x-y axis graph to display the value of two variables for a set of data. These variables can be discrete or continuous. To know more about discrete and continuous variable, please watch module 2 of this video series. Scatter plot दो वेरिएबल्स को प्रदर्शित करने का एक XY ग्राफ है। ये वेरिएबल्स डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, उनके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो सीरीज का मॉड्यूल 2 अवश्य देखिए। स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड टू फाइंड और टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सो एज टू डिटेक्ट द ट्रेंड्स, पैटर्न्स और कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। एज पर आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, scatter plot can be used in measure, analyze or improve stage in our Six Sigma projects. In a scatter plot, x-axis represents the independent variable, the one which we can control, and the variable on the y-axis is called the dependent variable. Scatter plot में x-axis पर जो वेरिएबल होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो वाई एक्सिस पर वेरिएबल होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी वांट टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द आवर्स ऑफ स्टडी वर्सेस द मार्क्स और स्कोर इन द एग्जाम। सो आवर्स ऑफ स्टडी विल बी x, that is independent variable, and score in the exam will be y, that is dependent variable. मान लीजिए हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि पढ़ाई के घंटे और एग्ज़ाम के स्कोर के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं, तो पढ़ाई के घंटे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और
एग्जाम में स्कोर को y एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्कैटर प्लॉट लुक्स लाइक दिस व्हेन x and y values are plotted on a xy graph. We don't join these points by any line or curve in a scatter plot. In a scatter plot, we just plot the points. Scatter plot देखने में आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए हुए ग्राफ जैसा लगता है, जिसमें x और y एक्सिस के पॉइंट्स को सिर्फ प्लॉट किया जाता है और इनको किसी लाइन या कर्व से ज्वाइन नहीं किया जाता। Concept of trend line came later when Galton and Carl Pearson developed the concept of correlation and regression. We will also learn about regression very soon. In a scatter plot, if with the increase of x, y also increases, that is called positive correlation. And if with the increase of x, y decreases, that is called negative correlation. If there is no effect of change in x on y, that is called no relation or null correlation. स्कैटर प्लॉट में अगर x के बढ़ने से y बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर x के बढ़ने से y घटता है तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर x के चेंज होने से y में कोई खास चेंज नहीं आता तो उसको हम कहते हैं नल कोरिलेशन या नो रिलेशन. लेबलिंग ऑफ XY डाटा इन अ स्कैटर प्लॉट विल नॉट चेंज द इंटरप्रिटेशन अबाउट द कोरिलेशन, and hence the labeling of XY points are not very important in a scatter plot. Scatter plot में अगर हम XY डाटा को लेबल भी कर देते हैं तो वो कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन में कोई चेंज नहीं लेके आता, इसलिए स्कैटर प्लॉट में XY डाटा को लेबल करना कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है. On your screen I am displaying about the scatter plot and its development. आपकी स्क्रीन पर मैं स्कैटर प्लॉट और इसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ तथ्य प्रदर्शित कर रहा हूँ. सो टाइम नाउ टू लर्न हाउ टू मेक अ स्कैटर प्लॉट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टेप बाय स्टेप. तो अब समय आ गया है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्कैटर प्लॉट कैसे बनाएं उसको स्टेप बाय स्टेप समझें और सीखें. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल वेयर there is only one value of y against each value of x. तो सबसे पहले मैं वो एग्जांपल पेश कर रहा हूँ जिसमें हर एक x वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही y की वैल्यू है. So the first step is to enter the data of x and y in two separate columns. Please note that both x and y should be variable. On your screen, I have displayed an example of studying the correlation between waiting time to withdraw money from a bank, that is x, versus customer satisfaction score out of 10, that is y, where waiting time is an independent variable and the customer satisfaction score or customer satisfaction rating is a dependent variable. Step 2 will be select the data of x and y columns only as shown on your screen. स्टेप 2 में हम x और y वेरिएबल डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाया है. आफ्टर डूइंग दिस द थर्ड स्टेप विल बी गो टू इंसर्ट, देन चार्ट्स और रिकमेंडेड चार्ट्स, देन टू ऑल चार्ट्स. फ्रॉम ऑल चार्ट्स सेलेक्ट द XY scatter diagram or XY scatter graph and then click OK. This will be the output of the third step. और ये थर्ड स्टेप की आउटपुट रहेगी. फोर्थ स्टेप इज टू गेट द चार्ट टाइटल एंड टाइटल फॉर x and y axis. For that, click inside the graph and once the graph is logged, you will get a plus sign on the right hand corner of the graph and click on that plus sign. This option is available in version 13 or above of Microsoft Excel. Once you click on the plus sign, then this menu will open where you have to tick the axis titles. In the sixth step, select each title one by one
click on that title and just type what you want to write against that title. छठे स्टेप में आपको टाइटल का नाम डालना है। इसके लिए हर टाइटल को एक एक करके क्लिक करते जाइए और जो भी टाइटल का नाम रखना है वहां पे टाइप कर दीजिए। Seventh step is only for the presentation purpose, and this step is to change the font size of titles. To change the font size of any title, click on that title and change the font size from the top menu. सातवां स्टेप जो है वो प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ज़्यादा है और स्टेप में हम टाइटल्स का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइटल का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उस टाइटल को क्लिक कीजिए और ऊपर जाकर ऊपर वाले मेन्यू से फॉन्ट साइज को चेंज कर दीजिए। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ वाई स्केल और एक्स स्केल, click on that particular scale. It will lock all the scale. Then change the font size from the top menu. अगर आपको y scale या x scale के font size चेंज करने हैं तो उस स्केल पर क्लिक कीजिए, पूरा स्केल लॉक हो जाएगा। या तो x एक्सिस पे क्लिक किया तो x एक्सिस का लॉक होगा, y एक्सिस पे क्लिक किया तो y एक्सिस का लॉक होगा और ऊपर जाकर मेन मेन्यू से फॉन्ट साइज को चेंज कर दीजिए। एंड दिस इज अवर प्रेजेंटेबल स्कैटर प्लॉट और ये हमारा एक प्रेजेंटेबल स्कैटर प्लॉट है। नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट स्टेप इज टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द पैटर्न of these points. Please note the pattern. Is it a positive correlation or is it a negative correlation or there is no correlation? अगला स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है कि अब आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन मिला या नेगेटिव कोरिलेशन मिला या कोई कोरिलेशन नहीं मिला। In our example, we have marked it as negative correlation because the value of y is decreasing with the increase in value of x. इस एग्जाम्पल में हमने इसको नेगेटिव कोरिलेशन इसलिए दिखाया है क्योंकि x के बढ़ने से y वैल्यू घट रही है। एंड आई होप यू विल बी नाउ क्लियर दैट इवन आफ्टर लेबलिंग द xy डेटा there is no change in our interpretation, that is negative correlation. Hence, labeling of xy data in scatter plot is not very important. और आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि xy डाटा को लेबल करने के बाद भी जो हमारा कंक्लूजन है नेगेटिव कोरिलेशन का उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसलिए स्कैटर प्लॉट में xy डाटा की लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। The limitations or disadvantages of a scatter plot is that it does not provide a quantitative measure to predict or estimate the value of y against any x. For example, we are not clear what will be the value of y, that is customer satisfaction score, against waiting time 17 minutes, 18 minutes or 14 minutes because these data points are not there in our data table. But the good news is that the regression analysis, which is based on scatter plot, will answer to all such questions. स्कैटर प्लॉट की लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें हर x के अगेंस्ट y की वैल्यू नहीं देता। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता लगाना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर 14 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट वेटिंग टाइम के अगेंस्ट क्या होगा, तो वो हम स्कैटर प्लॉट से नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो पॉइंट्स हमारे डाटा टेबल में थे ही नहीं। पर गुड न्यूज़ ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस से हम इस बात का अनुमान भी लगा सकते हैं। द नेक्स्ट लिमिटेशन और नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्कैटर प्लॉट इज दैट द रिजल्ट बेस्ड ऑन स्कैटर प्लॉट माइट नॉट बी रिपीटेबल फॉर सेम सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x इन द नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा or in a long run. To solve this issue and to test the repeatable results, more value of y should be taken, preferably against each x, and if it is not possible, then at least against some of the x values. How? I have demonstrated with the एग्जाम्पल। एक और लिमिटेशन और एक और डिसएडवांटेज स्कैटर प्लॉट की ये है कि जो वैल्यू हमने y की x के अगेंस्ट कैप्चर की थी, जरूरी नहीं है वो अगले सेट ऑफ डाटा में रिपीट करें।
पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम हर x वैल्यू के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा y वैल्यू कलेक्ट करें, और अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम कुछ x वैल्यू के अगेंस्ट ज़्यादा y की वैल्यू लें। और ये कैसे करना है ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपको प्रदर्शित किया है। इन दिस एग्जाम्पल यू विल नोट दैट अगेंस्ट वेटिंग टाइम ऑफ 5 minutes customer satisfaction score of 3 customers are being captured, and in the same way some more values are being repeated. And once we will draw the scatter plot of this data, it will look like what is being displayed on your screen. तो आप ये नोट करेंगे कि इस एग्जाम्पल में हमने वेटिंग टाइम 5 के अगेंस्ट में कम से कम 3 कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर इकट्ठा किया है, और ऐसे ही बाकी कुछ वैल्यू भी रिपीट कर रही हैं। और इस डाटा का स्कैटर प्लॉट मैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर अगेंस्ट ईच x वैल्यू एटलीस्ट 3 y वैल्यूज आर बीइंग कैप्चर्ड। 3y मीन्स 3 different customers against each and every waiting time, and this is the output in a scatter plot form of this डेटा। ये एक एग्जाम्पल वो है जिसमें हर x वैल्यू के अगेंस्ट में 3y की वैल्यू कैप्चर की गई है। 3y का मतलब ये है कि हर x वेटिंग टाइम के लिए 3 डिफरेंट कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर लिया गया है, और ये इस डाटा का स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में आउटपुट है। हाउ टू मेक अ स्कैटर डायग्राम फॉर सच केसेस? सेलेक्ट द डाटा of x and y and just plot it as explained earlier. So let me quickly tell about outliers in a scatter plot. When there is a high variation in y value against same value of x, that is outliers. मैं जल्दी से स्कैटर प्लॉट में आउटलायर्स के बारे में बता दूं। जब सेम वैल्यू ऑफ x के अगेंस्ट में y वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन होता है तो उसको आउटलायर कहा जाता है। आउटलायर मीन्स that the trend is not reliable based on the present data, or the trend cannot be established based on the present data. For example, against the waiting time 5, the customer satisfaction score varies from 1 to 10, and against the waiting time of 10 minutes, the customer satisfaction score varies from rating 3 to 8. जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि 5 मिनट वेटिंग टाइम के अगेंस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर में वेरिएशन 1 से लेकर 10 रेटिंग के बीच में है, और ऐसे ही वेटिंग टाइम 10 मिनट्स के अगेंस्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर में वेरिएशन 3 से 8 के बीच में है। सो बेस्ड ऑन दीज आउटलायर्स, दो द स्कैटर प्लॉट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, बट वी विल से दैट दिस कोरिलेशन और दिस ट्रेंड इज नॉट रिलायबल। हालांकि स्कैटर प्लॉट ने हमें नेगेटिव कोरिलेशन दर्शाया है, बट फिर भी हम इस हाई वेरिएशन की वजह से इस नेगेटिव कोरिलेशन को नहीं मानेंगे क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। आई विल नाउ शो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्कैटर प्लॉट। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम अ कॉल सेंटर वेयर द पर्पस ऑफ स्टडी इज टू सी a relation between average number of errors versus average number of calls handled by a person per day. And based on the data which was captured, we can infer from the scatter plot that the relationship is positive. That means as the number of calls increases per day, number of error also increases. तो स्कैटर प्लॉट के कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल तो एक कॉल सेंटर से है जिसमें ये स्टडी किया गया कि नंबर ऑफ एरर और एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स जो डेली अटेंड की जाती हैं उनके बीच में कोई कोरिलेशन है, और जब इस डाटा को प्लॉट किया गया तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन निकल के आया, और ये पाया गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल्स पर डे बढ़ती हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एरर भी बढ़ते हैं। दिस वाज अ स्टडी बाय HR डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी वेयर द स्कोप ऑफ स्टडी इज टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन absenteeism percentage, absenteeism means including leaves, with respect to
द एज ऑफ द एम्प्लॉइज। ये एक एग्जांपल एक कंपनी का है जिसमें एचआर को ये इंटरेस्ट था जानने में कि परसेंटेज एब्सेंटिज्म का एम्प्लॉय एज से कोई संबंध है या नहीं। जब मैं परसेंटेज एब्सेंटिज्म यहाँ बोल रहा हूँ तो उसमें लीव्स भी इंक्लूडेड है। आई एम डिस्प्लेइंग द स्कैटर प्लॉट of this study. Now I will not read it because I am very confident that you have developed a competency to interpret the results on any scatter plot. अब मैं आपकी स्क्रीन पर इस स्टडी का स्कैटर प्लॉट प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो चुकी है कि अब आप किसी भी स्कैटर प्लॉट के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाए। वी विल लर्न अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस वेरी सून इन वन ऑफ आवर फ्यूचर मॉड्यूल्स। हम बहुत ही जल्दी रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को फॉर्मली क्लोज करूं, जल्दी से अपने बारे में आपको बता दूं। I am Pankaj Agarwal. I am a corporate trainer, motivator, change management consultant, advisor, and life coach. I am also a trainer on Six Sigma Black Belt and Six Sigma Master Black Belt. The name of my company is Simply Dhruv. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Agarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। If you don't want to miss the information about the next module, please like and subscribe this video now. अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई हैव ऑल्सो मेड वेरी यूजफुल एंड पावरफुल वीडियो ऑन बिहेवियरल सब्जेक्ट, सो इफ यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यू विल गेट एक्सेस टू दोज वीडियोज आल्सो। मैंने बिहेवियरल और मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर भी बहुत पावरफुल वीडियो बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल टू यू। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। इफ़ यू विश टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड अपकमिंग वीडियोज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। फिर मिलेंगे।